राज्यसभा में रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी बोल रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ उसके बाद अब रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी बोलते हुए सीधे आपको लेकर चलते हैं राज्यसभा। From the bureaucracy, that is all what he did. If and when he is convinced that there is some mistake, he will correct it. No, why are but unless he is convinced, how can you do that? Minister, sir, he is capable of defending himself. Why are you coming to his rescue? The chair should come to the rescue of the country and members. My point is, why two states? Chair is impartial. No answer from the minister. He has no answer from the minister. No. He said what he can. What can I do? Can I ask him to say more? I am not arguing with the chair. I have highest respect for the chair. I am not arguing with the chair. My argument is with the minister, with the government, not with the chair. I request the chair not to please get involved into this. No, I am not at all. I only ask the Minister of Parliamentary Affairs and Defence Minister, can a government make two statements same day? Has it happened ever? Has it happened ever that the government makes two statements same day at the same incident? Army speaks with one voice and minister speaks with another voice. After minister, why there is discussion after minister said, only one line. can I take the bill? Only one line. Take the bill. Only one line. No bill. Defense Minister just stated that the army chief has gone. Let him come back with the feedback. What was that? Therefore, yesterday what he said was you are not sure as to what he has said. No. Yes, that's very important. Because if he has to await the feedback of the commander of the armed forces, this is who has wrong gone in the assertion. field, should we take it that what he said was correct? Therefore, why he disowned the first statement? Therefore, the question of misleading is clear. No, that's all. Now I have to take up the company's bill. House is adjourned to meet at 2 p.m. 2 p.m. What I understood, let me say. What I understood, let me say. No. It's a matter. I have to be very careful. I have to verify all the facts in detail. That is why yesterday I made a statement like that. Today Army Chief was gone to that area. If he come back, if I get some other details, I will come back to you. Okay, that's all right. Yeah. We did not make a statement. Defense Ministry, Army has made a statement. Yes. The minister contradicts the army statement. What is this? No, Venkayaji, let me see. He has made it very clear that please. He has please. not made anything. What I understood, let me say. What I understood, let me say. No. It's a matter. I have to be very careful. I have to verify all the facts in detail. That is why yesterday I made a statement like that. Today Army Chief was gone to that area. If he come back, if I get some other details, I will come back to you. Okay, that's all right. Yeah. We did not make a statement. Defense Ministry, Army has made a statement. The minister contradicts the army. तो रक्षा मंत्री के बयान के बाद राज्यसभा को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा को 2 बजे तक के लिए पहले ही स्थगित कर दिया गया था और राज्यसभा में बयान दे रहे थे ए.के. एंटनी, रक्षा मंत्री ने कहा कि कल मैंने बयान दिया था। उसके बाद आज जो सेना अध्यक्ष हैं वो गए हैं दौरे पर और उनके हवाले से जो जानकारी मिलेगी उस जानकारी के साथ मैं कल फिर बयान दूंगा। इस बात को लेकर राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों ने हंगामा शुरू किया और हंगामे के बाद राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है और सवाल ये हो रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमला बोला गया है उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, सरकार का रुख क्या है, सरकार क्या करने जा रही है, इस बात को लेकर जवाब मांगा जा रहा है। विपक्ष लगातार तेवर अपने कड़े किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद रक्षा मंत्री ने कोई विपक्ष को पुख्ता तौर पर कोई ना जानकारी दी है और ना ही वो जो बयान दे रहे हैं उससे विपक्ष खुश नजर आ रहा है। लिहाजा हंगामा हुआ और हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने सीमा पार से हमला किया है। इससे पहले भी लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब सवाल ये किया जा रहा है कि क्या वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को जवाब देना होगा, जब पाकिस्तान को ये बताना होगा
कि उसका जो ये दुस्साहस है उसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करने वाला है। बहरहाल आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी बयान दे रहे थे जिस पर बीजेपी ने हंगामा किया, बीजेपी के सांसदों ने हंगामा किया और इसके बाद दोनों ही सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने राज्यसभा में कहा कि उन्होंने कल बयान दिया था, उसके बाद आज उनके पास जो जानकारी है उस जानकारी के तहत वो बता रहे हैं। साथ ही सेना प्रमुख गए हुए हैं दौरे पर, उनके हवाले से जो खबर मिलेगी वो जानकारी भी वो पहुंचाएंगे और इसके बाद बीजेपी के सांसदों का हंगामा शुरू हो गया। I have to be very careful. I have to verify all the facts in detail. That is why yesterday I made a statement like that. Today Army Chief has gone to that area. If he come back, if I get some matter, I have to be very careful. I have to verify all the facts in detail. That is why yesterday I made a statement like that. Today Army Chief has gone to that area. If he come back, if I get some other details, I will come back to you. Okay, that's all right. तो सेना प्रमुख गए हैं दौरे पर और जब वो लौटेंगे और जब वो तथ्यों के बारे में बताएंगे उसके बाद फिर मैं जवाब दूंगा, फिर मैं बयान दूंगा। न्यूज़ 24 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, रक्षा मंत्री ने बयान दिया, उस पर विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ और स्थगित एक बार फिर से कार्रवाई हो गई है राज्यसभा की 2 बजे तक के लिए। देखिए, ये होना ही था क्योंकि जिस तरह से रणनीति बनी थी, खासकर बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी उसमें साफ था कि इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह से 2 तरह के बयान आए हैं, एक रक्षा मंत्रालय की तरफ से और एक रक्षा मंत्री को लेकर, और इसमें जितने डिफरेंसेस है उसमें साफ तौर पर रक्षा मंत्री के बयान के बाद एक तरह से जो 5 सैनिक शहीद हुए हैं उसमें एक तरह से आप पाकिस्तानी सेना को क्लीन चिट दे रहे थे। इसके बाद जो हंगामा हुआ है इससे कम को मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी लगातार कह रही है कि पहले माफी मांगे और सच्चाई सामने लाए। खुद आडवाणी जी ने कहा है कि जिस तरह की बातें रक्षा मंत्री ने कल कही है वो सच्चाई नहीं है, वो सच को सामने नहीं रख रहा है और सब पूरी जो भारत में लोग हैं, देशवासी काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं और ऐसे में जो सच्चाई है वहां पर क्या घटना घटी, एग्जैक्ट क्या है, वो चीजें सामने आनी चाहिए और ये रक्षा मंत्री को लाना चाहिए। और शायद इसीलिए इन हंगामे को देखने के बाद ही रक्षा मंत्री ने कहा है कि जब सेना प्रमुख लौटेंगे पुंछ से तब वो सच्चाई लाएंगे। लेकिन जो विपक्ष है उसका मूड नहीं लग रहा है, वो उनके मूड को देखकर साफ है कि आप इतनी आसानी से सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है और ज्यादा हमलावर हो गई है विपक्ष। अमित, रक्षा मंत्री भी डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। राज्यसभा में जब वो बयान दे रहे थे तो वो डिफेंसिव होते हुए नजर आए। देखिए, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जिस तरह से फर्क दिखा है उसके बाद उनके लिए बहुत ज्यादा बचता नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय का पहले बयान आता है, उसमें जो चीजें कही गई उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 20 आतंकी थे, साथ में सेना के जवान थे। लेकिन रक्षा मंत्री जब बयान देते हैं तो उसमें उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना को बाहर बरी कर दिया एक तरह से और सीधे सीधे आतंकवादियों को जिम्मेदारी ठहराया। और उसके बाद विपक्ष ने जिस तरह से पूरे इशू को उठाया है, इसके बाद रक्षा मंत्री को डिफेंसिव होना ही था और इसीलिए उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है। भूल कहाँ पर हुई है? रक्षा मंत्रालय की तरफ से हुई है, रक्षा मंत्री की तरफ से, ये देखना जरूरी है। ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह से हो गई ये सारी चीजें। जी अमित, तो एलओसी पर पाकिस्तानी हमले में 5 जवानों के शहीद होने को लेकर रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बयान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने रक्षा मंत्री के बयान को देश को गुमराह करने वाला बताया है। तो विपक्ष ने हंगामा किया है। जिस तरह से रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने बयान दिया, कल बयान दिया, उसके बाद आज बोले, उसी पर विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। बिल्कुल ही हास्यास्पद उनका बयान है और मैं अभी पार्लियामेंट जा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस ए के एंटनी के खिलाफ डाल दिया है कि उन्होंने सदन को और देश को गुमराह किया है उस तरह का बयान देकर। अपना बयान जस्टिफाई कराने के लिए उन्होंने जो आर्मी का बयान था, जो सच्चाई पर आधारित था, उसको चेंज कराया है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो इस देश के नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उसकी भाषा में बात कर रहे हैं। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर का बयान नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्टर का जो लोअर डिविजनल क्लार्क होता है ना, उसका बयान लगा हमें। अगर हमारे रक्षा मंत्री का बयान होता तो पाकिस्तान के साथ कल युद्ध की घोषणा होती। और हमने कल ये भी कहा है, हमारे सरकार में, हमारे संसद में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पाकिस्तान के असेंबली में रहने चाहिए। तो जो डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं वो बेबुनियाद
और इलॉजिकल स्टेटमेंट उन्होंने कल पार्लियामेंट में दिया है, जिससे इंडियन आर्मी के मिलिट्री का मनोबल बहुत बुरी तरह गिरेगा। और उन्होंने एक एस्केप रोड पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टेट को दिया है। और जो डिफेंस मिनिस्टर बयान दे रहे हैं वो आर्मी के बयान को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो क्या आर्मी को गैग ऑर्डर दे दिया गया है?